Today we will start the third chapter, Clothes We Wear. Before starting the new chapter, I want to show you some good habits. Good habits. Rise early in the morning. Greet your elders. Brush your teeth. Have a walk every day. Have a bath. Pray to God. Have a good diet. We must all help each other. Always reach school in time. Attend to your lessons. Always complete your homework. Have a playtime. Keep the public place neat and clean. Do not waste your energy and things. Help the old. Do not sit too close while watching television. Do not take too many snacks between meals. Learn to save your pocket money. Help parents in the housework. Remember to put your things at a proper place after using them. Throw waste material in the dustbin. Playing is a good habit, but finish your homework first. Save water and electricity. Trim your nails regularly. Try to speak the truth. Take part in social functions. Do not pressurize your parents to buy you things. Students always follow good habits. Then you become good students and good person. हमें हमेशा अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, तभी हम एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं. Now we will discuss hard words of chapter 3rd, Clothes We Wear. Students, tell me, why do we need clothes? We need clothes to cover our body, and clothes also protect us from heat, cold, rain and insect bites. Now, first hard word is material. material, material. Second is shelter. shelter. shelter means जैसे आप कहाँ पर रहते हो, अपने होम में, तो होम क्या आपका शेल्टर. थर्ड इज comfortable. comfortable. comfortable means आरामदायक. Fourth one is linen. linen. linen means a fiber that we get from the stem of flax plant, or it is a natural fiber. Fifth one is waterproof. 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 waterproof means क्लॉथ्स जिसके ऊपर पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल रेन कोट. सेवंथ वन इज फाइबर. FIBRE. फाइबर मीन्स ए लॉन्ग हेयर लाइक थ्रेड फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड. फाइबर जो है एक लंबे पतले से धागे की तरह होता है, जिससे क्या बनाया जाता है, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. एट्थ वन इज फैब्रिक. FABRIC. फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़ा, जिससे आपके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. नाइन्थ वन इज यार्न. YARN. यार्न मीन्स थ्रेड. टेंथ वन इज स्ट्रैंड्स. STRANDS. strands means a thin thread of something. 11th one is weaving. WEAVING. weaving, it is a method that we used for making a cloth. ये एक मेथड है जिससे हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं. A method in which cloth is made by two thread क्रिस क्रॉसिंग टुगेदर. इसमें हम टू थ्रेड्स का यूज करते हैं और उनको एक धागे को ऊपर दूसरे धागे को हम मूव करवाते हैं. 12th इज निटिंग.
KNITTING, knitting. Knitting means a method by which a single yarn is twisted into a series of loops टू मेक क्लोथ. निटिंग मेथड, आपने अपनी मम्मा को स्वेटर बनाते हुए देखा होगा. स्वेटर जो बनता है वो कौन से मेथड से? निटिंग. निटिंग जो है हाथों से भी की जा सकती है और मशीन से भी होती है. 13 इज नेचुरल फाइबर्स. NATURALFIBRES, नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज सिंथेटिक फाइबर. SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर. FIBRES, सिंथेटिक फाइबर. इट इज आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर. दिस फाइबर जो है फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है. नेक्स्ट इज कॉटन. COTTON. नेक्स्ट इज नाइलॉन. NYLON. नेक्स्ट इज पोलिएस्टर. POLYESTER, पोलिएस्टर. नाइलॉन और पोलिएस्टर जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं. नेक्स्ट इज रेयॉन. RAYON, रेयॉन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नेक्स्ट इज wrinkle free. WRINKLE, free. FREE, wrinkle free. wrinkle free means having no lines or creases on clothes. मतलब क्लॉथ्स के ऊपर कोई भी लाइंस नहीं पड़ती, कोई भी क्रीज नहीं होती. जैसे आपकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, वो भी सिंथेटिक फाइबर से बनी है. नेक्स्ट इज स्ट्रेचेबल. STRECHABLE, स्ट्रेचेबल. स्ट्रेचेबल मीन्स जैसे आप रबड़ बैंड को लेते हैं और उसको खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, उसको हम स्ट्रेचेबल कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइट वेट. LIGHT लाइट वेट मीन्स हल्का. नेक्स्ट इज डिटर्जेंट. DETERGENT, डिटर्जेंट. डिटर्जेंट मीन्स आपकी मम्मा जो है जो पाउडर कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, जैसे सर्फ एक्सल, टाइड. नेक्स्ट इज स्टेन्स. STAINS, स्टेन्स. स्टेन्स मीन्स डर्टी मार्क. कपड़ों के ऊपर गंदे दाग जो पड़ जाते हैं उसको हम स्टेन्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज मोथ. MOTH. मोथ मीन्स क्लॉथ ईटिंग इंसेक्ट. नेक्स्ट इज सिल्वर फिश. SILVERFISH, silver fish. Silver fish also mean clothes eating insects. Now we will discuss keywords. First keyword is natural fibers. Fibers that are obtained from either plants or animals. Natural fiber हमें किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से. प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन, जूट और फ्लैक्स. और एनिमल से हमें क्या मिलता है? वूल एंड सिल्क. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स are called natural fibers. Next is synthetic fibers. Synthetic fibers are also called man-made fibers. Fibers that are not found naturally, मीन्स हमें नेचुरली नहीं मिलता, ये हमें तैयार करना पड़ता है. फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, polyester, rayon, acrylic, these are examples of synthetic fibers. Students, आपको हार्ड वर्ड्स और की वर्ड्स साइंस की फेयर नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है. Now we will discuss short answer questions. The first is why do we need clothes? हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर, वी नीड क्लॉथ्स बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स. इंसेक्ट बाइट्स मीन्स मॉस्किटोज एक्सेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन समर? आप समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हो? यस, वेरी गुड. और विच सीजन इज गोइंग ऑन? समर सीजन. और समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. तो आंसर इज वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनन इन समर.
थर्ड वन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। विंटर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं? वूलन क्लॉथ्स। डार्क कलर्ड और वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। ठंडी में हम वूलन के क्लॉथ्स या डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं बिकॉज वो सनलाइट को ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करते हैं। फोर्थ वन इज व्हाट आर फाइबर्स? नेम द टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स। आंसर इज थिन हेयर लाइक मटीरियल्स दैट आर स्पन इनटू यार्न। पतले से धागे की तरह मटेरियल होता है जिसको हम मशीन के द्वारा या चरखे से हम क्या करते हैं, उसको धागे में चेंज कर देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। द टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज नेम एनी थ्री फीचर्स। फीचर्स मीन्स क्वालिटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। Answer: the three main feature of synthetic fibers are: first one, they are strong and lightweight. Second one, these fabrics do not wrinkle easily and are easy to wash. ये wrinkle free होते हैं, कोई भी इनमें lines वगैरह नहीं पड़ती और आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड वन, द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सच फाइबर्स आर स्ट्रेचेबल एंड वाटर प्रूफ। स्ट्रेचेबल होते हैं और पानी का भी कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। Second question is give any three ways in which we can take care of clothes. The first one is use good detergent or soap to wash your clothes. हमें अच्छे सोप का और डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करना चाहिए। Don't put clothes to dry in bright sunlight. तेज़ धूप में कपड़ों को सूखने नहीं डालना चाहिए, इससे कपड़ों के कलर हल्के पड़ जाते हैं। नंबर 3, क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड वेल, आयरन एंड देन पुट बैक इनटू कवर्ड। क्लॉथ्स अच्छी तरह से सूखने चाहिए, तब उनको आयरन करना चाहिए और वापस उनको कवर्ड में रख देना चाहिए। स्टूडेंट राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन साइंस फेयर नोटबुक।